behind every blockbuster, every creator, and every cinematic dream, you need a foundation. Studios, film schools, a city that breathes creativity. And while the world looked to Hollywood and Seoul, someone quietly spent decades building India's own blueprint. From mentoring filmmakers to shaping entire creative institutions, his work has touched almost every corner of Indian media. With 11 world records to his name, he is the force behind Marva Studios, F University, and the creation of the Noida Film City. Sandeep Parva. Welcome, Mr. Marva, to our special podcast episode today. Hi. We have been hearing Anurag Kashyap say this line, don't go to film school, cinema came first, theory came later. And that theory that came later was written by people who have not even made films. And yet there are, actors like Vijay Verma or, Jaideep Elawat who credit their entire success to film studying. So, in this ecosystem, how do you look at the institute and the efforts that you're making on ground, contributing to the next set of actors, filmmakers, and cultural ambassadors? Wonderful. See, it's very important to understand that what is the role of institution. That means the job of the institution is to save the time and save the money of the student. Now, student can be of any age, by the way. People who have entered into this beautiful industry without doing a course, they have spent large number of time, large number of hours in learning on the job. They have worked as an assistant, second assistant, third assistant. They have worked. They have been thrown out many times from the studios. They have been humiliated to the best. Then they have learned what filmmaking is all about. Whereas when you are a pass out of a film school, you know the subject, you know the industry, you know the loopholes, and you know how to actually operate and deal with the equipments. And this is the biggest difference one somebody has to understand. Somebody came to me and he said कि साहब हमने तो कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे. तो मैंने कहा करिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको. The only thing is that what you're going to learn in 10 years, probably you'll learn in one graduation program. What you learn in 20 years, what the film industry norms and things are, that you can learn just in 3 years. So I have assessed and researched on this subject myself, and I've learned my 3 months rigorous course is equal to 3 years of experience in the Wow. industry itself. And students who are learning with us, undergraduate 3 years, postgraduate 2 years, probably they may be spending 3 years with us, but the total quantum of business, the life learning period, what they carry from here is for almost 6 to 7 years, 8 years. So the minute they enter into industry, they're booked. They don't have to look for a job and they don't have to hunt for a job, or nobody can say that you're an illiterate and you still have to learn again. They are on the job. They know camera, they know editing, they know direction, they know acting. They are there to perform, to deliver. This is the difference between an educated from a film school and a one who's not. सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो कल्चर है इस इंडस्ट्री में, दैट वर्क फॉर अस टू गेट अ सर्टिफिकेट और एन एक्सपीरियंस विदाउट मनी, दैट इज व्हाट यू अर्न. बट if you pass out of an institute, you actually kind of cross that and get a job directly. See, earlier, the best part is when I talk about cinema, 50 years, 80 years, 70, 90 years, whatever, much before, there were limited films we used to make in this country at least, and people had ample time. There was a lot of patience. People were not tense. They were not irritated by nature. They had the attitude and aptitude to actually deliver to someone, to teach someone, even on the set. Today, the pace is very fast. I say, let's see, from last 50 years, 40 years, the pace is very fast. Film making is a very expensive business or a hobby, whatever you want to call it. And then people have no patience left. So in that case, no one has today time to teach someone, even to your own real ones. You have no time to teach them
on the set. It's an expensive set. The exercise is very expensive. You're shedding almost millions of rupees per day for that set, for that infra, what you have created probably in a studio or outdoor. You don't have a time to teach someone that how to perform, how to take a shot, how to give a sound. Nobody has got time. I'm sorry. And that's where, again, institution comes in. You're prepared well, you're trained well, you know the theory, you know the practical, you've been associated with different kind of cinema, films or television productions, and you are not alien when you are on the shooting floor. Yes, every director has his own way of dealing with manpower and dealing with the situation, and last but not the least, dealing with the script. So, same script can be directed by different directors absolutely in a different way. So his way of dealing with manpower can also be different. So that's the only thing which students should ready to accept, and that also we try to teach in the within the parameter of his training period, that you must learn how to deal with the manpower, how to understand your director, how to cope up with the situation, Wow, and these are how to practical get learnings. mixed up and align yourself with the need and requirements of the script, situation, and director's vision. सर बट लर्निंग तो इवॉल्व हो गई है आजकल के जो लर्नर्स हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और सो टू से एवरीवन यू नो हैज बिकम नाउ यूट्यूब क्रिएटर और इंस्टाग्राम क्रिएटर ये लोग तो अपने बेडरूम से बैठ के दे आर क्रिएटिंग ड्रामा फिल्म शॉर्ट ड्रामा फिल्म्स माइक्रो फिल्म्स. See, the industry has grown. And I personally feel that we don't have that kind of an infrastructure to accommodate another 10 million people overnight. Do you know that almost 10 million people are today working in media and entertainment industry? In Wow. India, I'm talking about only. And probably another 10 million people, they want to be part and parcel of this industry overnight. So, how to fulfill your urge, requirements, and desires, and your passion or love for this beautiful media and entertainment industry? I'm very happy. Thank God we have social media. At least you are fulfilling your urges by making projects for YouTube, for probably Facebook, or for your own friend circle, if not on WhatsApp and whatnot. I mean, that's fantastic. Rather, I can say that at least you have an opportunity to do something in spite of not doing anything. But once you are trained, properly trained, and prepared for this industry, you are 100 times better than all those laymen who are trying to get into it without course. सो ये पैशन की अगर हम बात करें तो इतना सारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है सोशल मीडिया पे डेली या फिर फिल्म इंडस्ट्री में भी जी. या आउटसाइड ऑफ इट आल्सो इन आर्ट एंड कल्चर एंड विद एआई आल्सो कमिंग टू प्ले how do you see originality remaining as part of creativity? See, the best part is to understand that the creativity word has been emerged from a word called creation. And creation means to create something new, to do something new. And any and every head has a brain which is different from ABC. So whatever, as an individual I'm talking, every individual can be a good thinker, can be a good executor, producer, director of any short film, of anything what you're talking about. And unless and until you use that, you will not even be able to do something good from even AI. Depending absolutely on AI is a risky proposition. But thinking, planning, designing, and feeding right words, right commands also matters when we talk about AI. So I personally feel that we are talking about AI probably more than required today, because it's a new technique of doing things. We were equally excited when we had digital format in this industry. We were same passionate about the
the Betacam format when it entered into the film and television industry. See, these things are very temporary. Probably another 2, 3 years, AI will be will be a part of day to day affairs. We will not be talking about it on a daily basis. The way we have stopped talking about digitization, the way we have stopped talking about a digital film. Every film is a digital film. When I still remember, I see it's been 32 years I'm in education, 34 years I'm in studio business, and almost 40 years in creative arts. And I still remember when when video came, there were formats like 8 mm finished, 16 mm almost finished, then 35 and 70 mm almost finished. We had a U-matic. In U-matic format came in, video came in, and we were worried कि वीडियो आ गया, सिनेमा तो चलेगा ही नहीं. अब तो सिनेमा कौन देखेगा? अब तो घर बैठ के लोग अपने ही वीसीआर के ऊपर फिल्में देखेंगे. But what happened? It came, it vanished. The new format came, U-matic. U-matic, maybe there were low band, high band. Then the new format came in Betacam, and then now digital. So all these formats are just techniques. They are just genre. They are the formats. They'll come and go, but creativity will remain there. So we have used these formats to express ourselves. AI is again, just a new format to express yourself. You want to show something, you have taken the help of AI. सर एआई और डीप फेक की अगर हम बात करें तो जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस ने पॉल वॉकर को दे काइंड ऑफ brought his deep fake out to finish the film in the end, and now it is being said that Fast X Part 2 maybe they're going to bring him back. So is deep fake के culture में, do you think there needs to be certain policies, there need to be certain consent, there needs to be some ethical boundaries or ground lines to use AI and deep fake in filmmaking? Media laws plays a very important role, and luckily I had a meeting only yesterday. We have tomorrow we're going to have a very powerful session on media laws in my campus itself for my faculty, so that they know what exactly is happening. uh, mm, uh, Indians, they all came to know about this deep fake and all that when Kumbh Mela was on, and people were amazed and shocked to see the presidents of all the countries having a dip into the Kumbh Mela. And then people realized, oh my God, what is this happening? Is it real? Is it real that the presidents and prime ministers of different countries are coming to Kumbh Mela and having a dip in Ganga? But it was all fake. And people realized that, oh my God, these things can be created. This is just a year back. I'm talking, not much people were aware of these apps. But then, yes, it has to have some kind of a restriction. And recently, our dear friend Amitabh Bachchan has filed a case in a High Court, a Supreme Court, and it has now being followed by many important celebrities of the country, where they have requested a court of law to come out immediately with some kind of a provision where people should not use the voice, picture, body, or anything in making any new program with the support of AI. So, And the stay has already been granted, okay, which is a wonderful thing. That means you cannot now misuse celebrity status into your own programs or on your productions. सर बट एक तरीके से देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी एक तरीके से एक एक्टर को इमॉर्टल बना रही है, Depends. Depends. If you have you paid for it. See, you are creating a product without even paying the basic charges to the artist. That means you are infringing into a wrong habits or wrong system. तो वहाँ पर लॉ जो है वो एक अपना काम करेगा, और आज तो स्टे ग्रांट हो गई है, तो अब कोई भी इस तरीके से, अब मेरे ख्याल से अभी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये केसेस चलेंगे कि जो सेलिब्रिटीज चाहते हैं कि मेरा नाम, मेरे पिक्चर, मेरी आवाज़ मिसयूज ना हो, तो वो कोर्ट में जाकर अपने दे हैव टू आस्क फॉर अ ग्रांट ऑफ अ स्टे, और जब स्टे मिलती जाएगी तो उसको कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ, एंड दैट मीन्स यू आर लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन. तो वो
बचाव तो अब हो शुरू हो गया है। और हकीकत ये है कि जो एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो उनकी तो ये रोज़ी-रोटी है। अगर आपने उनकी पूरी शक्ल को, आवाज़ को बिना पैसे दिए इस्तेमाल कर लिया है, तो वो क्या खाएगा? उसकी फ़ैमिली कैसे चलेगी? आप इमॉर्टल की बात कर रहे हो, पहले ये ज़िंदगी तो जी ले। अगर उसकी रोज़ी-रोटी खत्म हो गई, तो वो कैसे खा तो देयर इज़ नो हार्म, व्हाट आई पर्सनली फील इन क्रिएटिंग अ न्यू कैरेक्टर। अब मैंने हमारे जो स्कूल ऑफ एनिमेशन है उसके अंदर हमने अभी 4-5 नए कैरेक्टर डेवलप किए हैं। आज मॉडल मैंने अप्रूव किए हैं, नए मॉडल बनाए हैं। हमने उन मॉडल्स को अब हम रजिस्टर कराएँगे, कॉपीराइट करेंगे और उसमें कोई उन कैरेक्टर्स को दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरे सिवा। और मैं उन कैरेक्टर्स को खूब पॉपुलर करूँगा और उनको जीवित करूँगा। फिर वो एनिमेटेड फ़िल्म से लेकर और हकीकत में किसी एआई फ़िल्म के हिस्सेदार बनेंगे, उसके वो कैरेक्टर बनेंगे, उनकी फ़िल्म बन सकेगी, वो चीज़ जो है वो लीगल है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मुझे आगे जाकर शर्मिंदा होना पड़े। तो ये हमारे जो कैरेक्टर होंगे ये मेरे क्रिएट किए हुए हैं। वो और मैंने क्या किया 5 आर्टिस्ट को बोला 5 आप अलग-अलग स्टैच्यूज़ बनाइए, अलग-अलग शक्लों के। वो 5 बच्चों की क्रिएटिविटी काम आ रही, उनकी थिंकिंग काम आ रही, उनके ज़िंदगी भर के जो सपने उन्होंने लिए हैं, उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी शक्ल उन्होंने बना दी, वो किसी से मिलती नहीं। वो किसी से कंपैरिज़न ही मैं कर पा रहा, वो बिल्कुल एक ऐसे नए कैरेक्टर तैयार हो गए हैं। अब उनको हम रजिस्टर करा लेंगे, वो हमारे कैरेक्टर हैं। उनको मैं जीवित भी कर सकता हूँ, उनको मैं स्टार भी बना सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच मनी आई कैन स्पेंड ऑन देम। तो वहाँ तक अगर कोई कर रहा है, तो ये अगर ये एआई ना होता, तो शायद मैं ऐसा ना सोचता, क्योंकि ये शायद ख़्याल मेरे दिमाग में नहीं आता। तो हम इस तरीके से काम करेंगे तो एआई जो है वो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एआई को लेकर की जा सकती साउंड, हैं। कुछ म्यूजिक भी आर्टिस्ट, कुछ भी आजकल तो म्यूजिशियंस के टोन प्लस वॉइस को यूज करके कॉम्पोजिशंस क्रिएट हो रही है। हो रही है अगर वो इजाजत दे रहे हैं और जो गुजर गए हैं जो शायद इस धरती पे नहीं है और उसकी एक लिमिटेशन है अनलेस एंड अनटिल वो उनकी फैमिली ने कोई राइट्स रखे हुए हैं फिर तो वो भी इम्पॉसिबल है और अगर नहीं है तो वो यूज करते हैं तो वो ठीक है। टिल इट्स अ हम्म, ट्रिब्यूट एंड नॉट मैनिपुलेशन। बिल्कुल। ट्रू सर। सर, वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग वर्ल्ड है। एंड वर्ल्ड के लिए जैसे पिक्सार है, इंडिया का कोई स्टूडियो वर्ल्ड को नहीं मिला जहाँ पे ग्लोबल स्टोरी टेलिंग उस लेवल पे की है। नहीं देखिए आपको क्या हमने लगता क्या है कि किया हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में बहुत विश्वास करते रहे। बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज यूरोपियन कंपनीज हैं जो वेल नोन कंपनीज जिनको जो चर्चित हैं दुनिया भर के अंदर वो लोग ठेका ले रही हैं बिजनेस करने का और हम जो हैं वो सर्विस इंडस्ट्री में होने के कारण उनसे फर्दर ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं और यहाँ पे क्योंकि लेबर सस्ती है और हम लोग बड़े हार्ड वर्किंग एनिमेटर्स हैं यहाँ पर तो हम उन फ़िल्मों को तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फ़ीचर फ़िल्में हैं जो अमेरिकन फ़िल्में जिनकी तारीफ़ हो रही है, तालियाँ बज रही हैं दुनिया भर में, लेकिन अगर उनकी आप ज़रा-सी तहकीकात करेंगे, डिटेल में जाएँगे, हैरान होंगे वो सारा एनिमेशन इंडिया में रेडी हुआ है। और कितने जैसे चाहे डिज़्नी चैनल है, चाहे दूसरे कार्टून चैनल हैं, एनिमेटेड चैनल हैं, उनके अंदर बहुत सारा काम जो हो रहा है, वो इंडियंस कर रहे हैं। हो सकता है उनका अभी नाम नहीं आ रहा, नाम तो उस कंपनी का आ रहा है जो या तो चैनल आईमैक्स चला रही प्रोडक्शन है स्टूडियो है। या वो उस फ़िल्म को बना रही है। बट इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है पिछले 10 सालों में कि हम लोगों के हाथ खुल गए एट द एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉयर इन डिफरेंट कंट्रीज। आज अगर हिंदुस्तान चाहे कि हम अपने एनिमेटेड चैनल चलाना चाहते हैं या हम अपनी एनिमेशन फिल्में बनाना चाहते हैं तो ऐसी आपने देख ही लिया अभी जो अभी एनिमेटेड फिल्म रिलीज हुई है विच हैज़ डन एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल और उससे पहले 3-4 साल पहले और ऐसी एनिमेटेड फिल्में जो बड़े थिएटर पर आपको कमर्शियल थिएटर नरसिम्हा पे का इज द रिलीज हुई क्लासिक हैं एग्जांपल। एंड दे हैव डन अ एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। वेरी ट्रू। सर, हॉलीवुड ने अमेरिका बेचा, के पॉप ने कोरिया बेचा, बेचा। बट बेचा, हाँ बट इंडिया कभी भी
इस टाइप से क्रिएट नहीं कर पाया है अपनी पहचान की। यहाँ पे एक सिनेमा ने कंट्री के कल्चर को मैं यहाँ आई एम सॉरी, मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। हमने हमने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बेचा। बॉलीवुड इज अ मोर पॉपुलर वर्ड एक्चुअली। मैं तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलता हूँ क्योंकि हम लोग 28 प्रदेशों से फिल्में बना रहे हैं और 28 ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर हम लोग इतना काम कर रहे हैं। दिस इज द ओनली कंट्री, वी आर द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। हम लोग तकरीबन 2000 फिल्में बनाते हैं एवरी ईयर। 28 भाषाओं में। हम लोग तकरीबन 950 चैनल हिंदुस्तान की वाह। सरजमीन से हम लोग लोगों को दिखा रहे हैं और बिगेस्ट टेलीविजन ऑडियंस है आज हमारे पास, जो ओटीटी देखती है, टीवी देखती है, सिनेमा देखती है। और मैं आपको यहाँ बड़े दावे के साथ यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं जितनी भी मुल्कों में गया हूँ, जैसे ही लोगों को ये पता चलता है कि मेरा संपर्क जो है वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से है, वो चकाचौंध हो जाते हैं, मेरी इंपॉर्टेंस डबल हो जाती है। और लोग मोमेंट ऑफ कहते हैं, प्राइड। अरे यू आर रनिंग अ फिल्म स्टूडियो, यू आर रनिंग अ फिल्म एकेडमी, यू आर रनिंग अ फिल्म यूनिवर्सिटी, यू आर रनिंग अ यू आर मेकिंग फिल्म्स। तो वो तो लोग पागल हो जाते हैं। तो हमने तो ऑलरेडी बॉलीवुड बेचा है। 162 देशों में हिंदुस्तानी फिल्में देखी जाती हैं। वाह। और कई जगह पे, एक बात और बता दूं, कई जगह पे जो हिंदी लोग सिर्फ हिंदी फिल्मों को देखकर सीखे हैं। और कुछ तो ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी गानों को उन्होंने अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। मुझे तो आपने 2-3 बातें बड़ी ज़बरदस्त याद दिला दी। मैं सेनेगल गया। सेनेगल में आई वेंट एज़ अ स्टेट गेस्ट एंड आई वाज़ टेकन केयर बाय माय ओन एम्बेसडर, हमारे हिंदुस्तान के वो, और उनका कल्चर मिनिस्टर वो मेरे साथ थे। मुझे 4 दिन में 6-7 इवेंट अटेंड करने थे। और मैं जिस भी इवेंट में जाऊँ, उसके इवेंट ख़त्म होने के बाद वो सेनेगल के लोग आएँ और मंच तक आस-पास और आकर मुझे ऐसे छू के चले जाएँ, फिर ऐसे छू के चले जाएँ। 1 इवेंट हो गया, 2 इवेंट हो गए, तीसरा इवेंट हुआ। मैंने उनके कल्चर मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा साहब ये बड़ा अच्छा कस्टम है, मुझे समझ नहीं आया, बुरा तो बोल नहीं सकता था। तो मैंने कहा साहब ये प्रोग्राम खत्म होता है, ये सेनेगल के लोग आते हैं आपके मुल्क के और आके मुझे यूँ छू के चले जाते हैं। क्या ये कस्टम है कि आपके किसी चीफ गेस्ट रिचुअल। को हाँ जी। ऐसे करके हाथ लगा के भाग जाना या कुछ करना? तो ही सेड, आई हैव नेवर सीन माय लाइफ, व्हाट इज दिस? तो ही इनवाइटेड, ही सेड प्लीज कम हियर। तो एक आदमी जो भागा था थोड़ी देर पहले, उसको बुलाया। तो उससे पूछा कि व्हाट इज दिस, व्हाई यू पीपल कमिंग एंड टचिंग मिस्टर मारवा एंड देन यू गो अवे, व्हाट इज दिस? ही सेज सर व्हाट आर यू टॉकिंग, ही इज द फर्स्ट इंडियन from Indian film industry in Senegal as a state guest. The 17 state guests in last 17 years were only fertilizer ministers from India. वाओ। तो खाद्य मंत्री जाते थे। तो ये पहली दफा कोई हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से कोई आया है, तो हम इसको छूना चाहते हैं ताकि हम आने वाली अपनी जनरेशन को ये कह सकें कि बॉलीवुड से एक आदमी हमारे मुल्क में आया था और हमने उसे छुआ। I was वाओ। amazed. वाओ। मेरी तो आंखों में पानी आ गया ये सब सुनकर। वो माहौल ऐसा था कि इतना प्यार हिंदुस्तानी फिल्मों के साथ। मतलब ये एक आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ और ऐसे किस्से बहुत सारे हैं मेरे पास। मैं नाइजीरिया गया स्टेट गेस्ट बनकर, और वहाँ पर जब शाम को मेरे ऑनर में एक ऑफिशियल डिनर रखा गया, तो उस डिनर से पहले जो कल्चरल प्रोग्राम रखा गया, I was amazed to see Nigerian singing Hindi songs, dancing on Hindi numbers, and they're trying to do their best what we do in Bollywood. मैं हैरान हो गया। मतलब आप ये समझिए, मैं 145 कंट्री के स्टूडेंट्स को तैयार कर चुका हूँ मारवा स्टूडियो में और AAFT में, तो कोई तो बात होगी। तो ये नहीं आप कह सकते, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में। वो और बात है कि बहुत सारे लोगों को शायद शर्म आ रही होगी ये बोलने के लिए कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्में जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान का मैं कहूँगा कल्चर एम्बेसडर हैं। इससे बड़ा हमारा कोई कल्चर एम्बेसडर नहीं हो सकता। हमारी अभी मैं उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर को मिला, परसों मैं
तिमोर सेते के एम्बेसडर को मिला। 15 दिन पहले मैं बेनिन के एम्बेसडर से बात कर रहा था, और दे हैव सो मच टू टॉक अबाउट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मैं आपको किन किन शब्दों में बयान करूं, मुझे मतलब कम से कम 2 घंटे चाहिए ये बताने के लिए कि लोगों को हिंदुस्तानी फिल्मों से कितना प्यार है। लोग बड़े हुए हैं, लोगों ने अपनी जिंदगी के तौर और तरीके बदल लिए हैं, खासतौर पे हिंदी सिनेमा को देखकर। जो माँ का रोल है, जो फैमिली ट्रेडिशन हम दिखाते हैं अपनी फिल्मों के अंदर, जो मरने मिटने के लिए, देश के लिए हम लोग अपनी जान की कुर्बानी जो दिखाते हैं सिनेमा के अंदर, जो हम लोग मोहब्बत के लिए, जो लड़का या लड़की अपनी जान नछावर कर देता है अपने प्यार के लिए, ये चीजें अब वेस्टर्न वर्ल्ड में तो नजर नहीं आएंगी आपको, और अफ्रीकन कंट्रीज में थोड़ी बहुत शायद बची हुई है। तो जब वो हिंदुस्तानी फिल्मों को देखते हैं तो ये उनके दिलों में नई मोहब्बत जागृत हो जाती है। उनको उनको अपने देश से प्यार हो जाता है, उनको अपनी फैमिली के प्रति एक नया आव भाव पैदा हो जाता है। वो जो ब्रोकन फैमिलीज हैं उनके अंदर नई मोहब्बत पैदा हो जाती है। कितना बोलूंगा मैं आपको। वाओ, सिर्फ इससे एक बात तो ज़रूर है कि फिल्म्स काइंड ऑफ change the country's narrative. They are a vehicle not only for bringing a change on the grassroots level, but also something that our government has time and again used, to change the society's thinking about critical, cultural nuances or society nuances. I think you're absolutely right, and I think इसको make it a little broader spectrum because सिर्फ सिनेमा मत बोलिए, मीडिया and cinema साथ जोड़िए, which changes the perception, and it has been used by every country, every big company to develop a new perception, set narrative and things like that. तो सिनेमा क्योंकि पूरे मीडिया का ही एक हिस्सा है, प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है, आज न्यू मीडिया है, सबको एक साथ जोड़ा जाता है, लेकिन सिनेमा का प्रभाव ज्यादा है क्योंकि सिनेमा जो है वो सीधा आपके दिलों में उतरता है। क्योंकि हम लोग जो सिनेमा की जो लैंग्वेज है, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, तो वो जो है सीधा दिल में उतरेगा। शायद अखबार पढ़ के वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वही कहानी सिनेमा के जरिए अगर आपको बड़े पर्दे पे दिखाई जाएगी तो उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है। आप कह रहे हो लिटरेचर भी इज आल्सो मीडिया? See, literature word is a different word. मीडिया की सेगमेंट अलग है, लेकिन आई कैन से दैट लिटरेचर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और मीडिया एंड सिनेमा दे ऑल पैरेलल लाइंस। इनको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक कहानी लिखी जाती है तभी तो कहानी बनाई जाती है। तो मैंने हमेशा ये बोला है कि सिनेमा इज अ विजुअल लिटरेचर। एक आप सिर्फ किताब लिखना ही आज लिटरेचर नहीं रह गया, किताब को जब आप पर्दे पे उतार देते हैं वो भी लिटरेचर है, वो विजुअल लिटरेचर है। हो सकता है किताब पढ़ के शायद इतना बड़ा इफेक्ट ना आए जितना बड़ा इफेक्ट सिनेमा से होता है। कई किताबें लिखी गई भारत की आज़ादी के ऊपर, उनका बहुत असर हुआ, तभी तो आज़ाद हुआ देश। लेकिन अगर उसमें से एक कहानी उठाकर जब हम सिनेमा बनाते हैं तो करोड़ों लोग उस कहानी को पढ़ते हैं पर्दे के ऊपर। तो ये समझ लेना चाहिए उन लोगों को, खास तौर पे जो जिन्होंने हमेशा सिनेमा को और लिटरेचर को अलग किया है। अब अलग नहीं है, ये समझ के चलिए, क्योंकि अगर कहानी नहीं लिखी गई होगी तो सिनेमा कैसे बनेगा। तो वो किताब जो बनी, वो जो ऑथर ने किताब लिख दी, जो एक लिटरेचर का हिस्सा बन चुकी है, और ऐसे कम से कम कई ऐसे राइटर्स हैं जो चर्चित हुए अपने लिटरेचर की वजह से, अपने किताबों की वजह से, लेकिन उनकी किताबों पे सिनेमा भी तो बना। और कई ऐसे हैं जिन्होंने कहानियां लिखी, चर्चित हुए, नामी गिरामी हुए, क्योंकि उन पे सिनेमा बना। दोनों चीजें। इतने सारे कल्चर्स को देखकर on how they are promoting their own art forms, what do you think the government can take as steps to further the adoption of art in the grassroots level? ये तो देखिए, हम लोगों ने 12 साल पहले ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गठन किया था। आइडिया वाज टू सपोर्ट द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू हैव बेस्ट ऑफ रिलेशन पॉसिबल विद ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम 90 तक ही पहुंचे हैं, हमारा टारगेट तो 200 कंट्री है वैसे। Wow. लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि 90 देशों की सरकारों ने हमें अपना
कल्चर रिप्रेजेंटेटिव या कल्चर एम्बेसडर कह लीजिए, या अपने कल्चर फोरम का अध्यक्ष चुन लिया है। और और ये यहाँ ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, उसके साइमल्टेनियसली आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी, आई मस्ट से दैट, कि सरकार ने भी मुझे 5 मंत्रालयों में अफसर बना दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स में, एमएसएमई में, और एक आध और मिनिस्ट्री में सरकार ने मुझे बड़ी अच्छी पदवियों पे एक अच्छे राष्ट्रीय लेवल के ऊपर चुना है और अध्यक्ष बनाया है इन संस्थाओं का। और उसका शायद पर्पस ही यही है कि जिस आर्ट और कल्चर को लेकर मैं चाहे दूसरों के मुल्कों को हिंदुस्तान में पॉपुलर कर रहा हूं, और उससे भी ज़्यादा जो मेरा काम है कि हिंदुस्तानी आर्ट और कल्चर को मैं इन तमाम देशों में जो पॉपुलर कर रहा हूं, उसमें सरकार सहायक बनी रहे। तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती, बार बार पूछना नहीं पड़ता, मुझे बार बार चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती। तो मेरे पास एक ब्रैकेट है कि इस पैरामीटर के अंदर मैं देश को उजागर कर सकता हूँ, इन देशों में जा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, भारत की बात करता हूँ, हमारे संस्कारों की बात करता हूँ, हमारे फिल्मों की बात करता हूँ। और उससे सबसे मज़े की बात यह है कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मैं इस पूरे घेरे में ला चुका हूँ। करीब 50,000 आदमी की फैमिली है आज मारवा स्टूडियो, डायरेक्ट फैमिली है। Wow. और एक 50,000 मीडिया प्रोफेशनल की फैमिली का अध्यक्ष होने के नाते मेरी वैसे भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। सर, इन सब में अगर हमारी जो आजकल की, जैसे आप यू वन ऑलमोस्ट, यू वन 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और एंड विनिंग 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इज, मतलब जिंदगी में शायद आदमी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड या ज्यादा 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कमा लेगा। What does it actually take to win 11 world records? वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब होता है 770 करोड़ लोगों में किसी एक आदमी ने छक्का मार दिया। तो मैं सही ऊपर है। वाले का, अपने माँ बाप का इतना जितना शुक्रिया करूं उतना कम है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग इस मकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना तो मैंने अवार्ड्स के लिए काम किया, ना मैंने रिवॉर्ड्स के लिए काम किया। मैं काम करता चला गया, और काम जब आप करते चले जाएंगे तो रिकॉर्ड भी बनेंगे, रिवॉर्ड भी मिलेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका पैसा भी बनेगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस मकाम तक पहुंच पाया कि मेरे काम को वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा मिला। मैंने जब फिल्म सिटी बनाई थी तो ऑब्वियसली मैं पहले तो पागल ही कहलाया, बेवकूफ़ कहलाया, कुछ मुझे बड़े अच्छे एडजेक्टिव सुनने को मिलते थे अलग अलग ग्रुपों से, और पंजाबी के तो मैं दोहरा भी नहीं सकता यहाँ। लेकिन मैं एडमेंट था, एक सोच थी, उसको एक विजन था, उसको मैं एक प्रैक्टिकल रूप देना चाहता था। मुंबई में सिर्फ भारत की एक फिल्म सिटी हुआ करती थी। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उत्तर भारत की पहली, भारत की दूसरी फिल्म सिटी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कट शॉर्ट करूं अगर, क्योंकि ये तो 38 साल से मैं इस फिल्म सिटी का स्पोक्समैन बना हुआ हूं, और कट शॉर्ट ये कह सकता हूं कि आज नोएडा फिल्म सिटी दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 चैनल इस वक्त 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 आदमी यहाँ पर 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करता है। और जो कास्केडिंग इफेक्ट है कि तकरीबन 1,50,000 आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। और अब जब लोग मुझे फाउंडर बोलते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि चलिए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए कि मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सका। ये यहीं ख़त्म नहीं होता। हम लोगों ने तकरीबन फिल्म सिटी के अंदर 9 करोड़ की फुटफॉल हो चुकी है, और मारवा स्टूडियो में अकेले ही तकरीबन 30 लाख आदमी 156 कंट्री से आ चुका है। तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना फिल्म एंड कल्चर टूरिज्म में। क्योंकि जब 34 साल पहले मैंने फिल्म एंड कल्चर टूरिज्म का जब ये शब्द इंग्लिश डिक्शनरी को दिया, तो तब भी लोग हैरान थे कि भाई ये क्या भला है। आज सारी दुनिया फिल्म एंड कल्चर टूरिज्म की बात कर रही है।
तो हमने फिल्म एंड कल्चर टूरिज्म में भी अपना पूरा रोल निभाया, क्योंकि मुझे लगा ये भी मेरा ही फर्ज है कि हम इसका पूरा फायदा उठाएं। मुझे सरकार ने नेशनल फेडरेशन ऑफ टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया लिमिटेड का 5 साल तक अध्यक्ष रखा। वो भी खैर अब तो टेन्योर बहुत पहले खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने मीडिया और एंटरटेनमेंट के जरिए हिंदुस्तान के इस पूरे टूरिज्म को एक नया रूप, एक नया रंग और एक, बिकॉज टोटल अगर इसकी इकोनॉमी अगर आप डिस्कस करें तो इट गोल्स इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। 1.5 लाख आदमी रोजी रोटी कमा रहा है, 9 करोड़ आदमी की फुटफॉल दे रहा हूं, और अगर आप हिसाब लगाएं तो कंस्ट्रक्शन, लकड़ी, लोहा, पत्थर, गाड़ी, पेट्रोल, कारें, कन्वेंस, उसके बाद फिर कपड़ा लत्ता, मार्केट खर्चा, ये टोटल जो इकोनॉमी है, प्रॉब्ली इट मे क्रॉस 20,000 करोड़। Wow. तो अगर किसी देश की इकोनॉमी को किसी एक प्रोजेक्ट से इतना बड़ा फायदा हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि नोएडा फिल्म सिटी उसमें एक अच्छा उदाहरण, अंतरराष्ट्रीय उदाहरण बन चुकी है। सर बट एक्चुअली लगता क्या है इतने स्केल पे किसी एक इंडस्ट्री को ग्लोबल स्केल पे इम्पैक्ट करना, मतलब एक के बाद इनोवेशन, एक के बाद फर्स्ट क्रिएट करना, चाहे वो क्लब को लेकर हो, फिल्म क्लब को लेकर, इंस्टीट्यूट को लेकर हो, चाहे वो बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे फर्स्ट हैं। द फर्स्ट film city of North India, second in the country. The first professional film studio of North India, Marva Studios. The first film academy, private film academy in the country, the fourth in the country otherwise. The first film club, the first private film and television research center. तो ऐसे करते करते फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ नोएडा, रेडियो नोएडा, इस तरह एक पूरी सीरीज बन जाएगी अगर मैं बात करूंगा कि सी यू हैव टू बी इनोवेटिव। आप खास तौर पे मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर आप हैं तो ये मुझे लगता है आपका धर्म बन जाता है, ये आपका काम का एक हिस्सा होना चाहिए कि आपको हर बार एक नई चीज सोचनी है, कुछ नया, कुछ अलग, क्योंकि आप जब तक अलग नहीं होंगे तब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी। अगर आप भीड़ में चलते रहेंगे तो भीड़ में तो फिर कोई पहचानना चाहता ही नहीं। अगर आप भीड़ से अलग हैं तो शायद आपकी कोई पहचान बन सके। सर लेकिन इन सब में हर वक्त वो जर्नी स्मूथ नहीं रहती। देयर वुड हैव बीन चैलेंजेस, देयर वुड हैव बीन सेटबैक्स, देयर वुड हैव बीन डिस्करेजमेंट आल्सो, यू नो। हर कदम पर मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि बेटा याद रखना कि घर के दरवाजे से बाहर निकलोगे ना, जिस तरफ नजर उठा के देखोगे मुसीबत ही मुसीबत है। जैसे ही घर से कदम बाहर उठाया तो नाली आ गई, नाली गंदी पड़ी है, सामने देखोगे तो लैंप पोस्ट है, बल्ब टूटा पड़ा है, जल नहीं रहा है, राइट में देखोगे तो पेड़ गिरा पड़ा है, झुका पड़ा है, और उसकी जो चारों तरफ रेलिंग लगनी चाहिए थी वो भी टूटी पड़ी है, उखड़ी पड़ी है। आप सड़क पे कदम रखोगे तो सड़क में गड्ढे हो रहे हैं। तो बिल्कुल मैंने कहा तो बिल्कुल, तो ये तो जिंदगी ही ये है, हर कदम के ऊपर आपको कोई ना कोई मुसीबत या कोई ना कोई अड़चन नजर आती रहेगी। अक्लमंद वही होता है जो इन तमाम मुसीबतों के ऊपर भी पांव रखकर अगला कदम ले ले, तब आपको कामयाबी मिलती है, वरना कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, उन्हीं गड्ढों में आप समा जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, नॉट टू गिव अप, यस, नो मैटर व्हाट, नॉट टू गिव अप। जिंदगी के अंदर हमने ये समझा है कि जो हमारे पिताजी ने कहा कि आप ये समझ लीजिए कि हर मुसीबत आपकी जिंदगी के कामयाबी का अगला स्टेप है। अगर आप ये समझ लेंगे कि सीढ़ी जो चढ़ रहे हैं ये आपकी कामयाबी की सीढ़ी है और उस पर जो भी मुसीबत आ रही है उसको भूलना पड़ेगा, तभी आप उस मकाम तक पहुंचेंगे जहां आप चढ़ना चाहते हैं। सर पहले जो अच्छी फिल्में बनती थी वो सिर्फ बॉलीवुड से निकलती थी, बट आजकल काफ़ी सारी मतलब इंडिया की सबसे एम्बिशियस स्टोरीज आर आल्सो कमिंग आउट फ्रॉम साउथ। हाँ, नहीं, ये मैं करेक्ट करूंगा आपको, ऐसा नहीं है। शायद ये हो सकता है कि आप जानती होंगी कि हिंदी फिल्मों से अच्छी फिल्में निकली, हमारे तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, ऐसी फिल्में रही हैं जिन्होंने कमाल किया हुआ है।
और मैं 50 साल 70 साल की बात करता हूँ, जैसे हम पीछे जाएं। वो और बात है कि हमारे सारी सिनेमाओं में हिंदी सिनेमा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा फिल्में हिंदी की बनती हैं, सबसे विदेश में भी हिंदी फिल्में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और भारत में भी हिंदी फिल्मों का ज़्यादा बोलबाला है। और उसकी वजह भी यही हो गई कि जो हिंदी स्टार्स हैं शायद इसलिए वो भी ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो वो लगता है, लेकिन हमारे बाकी प्रदेशों में जो फ़िल्में बनाई जाती रही हैं, जो दूसरी भाषाओं में भी बनाती गई हैं, वो भी बहुत चर्चित हैं। साउथ की बात अगर करें तो वहाँ भी बहुत बड़े-बड़े स्टार्स हुए हैं, और पूरे इसीलिए हम लोग इसको बॉलीवुड बोलने के बजाय इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के नाम से विदेश में पहचान बनाना चाहते हैं। और अब लोगों को तो यकीन ही हो गया है कि जब से साउथ की कुछ फ़िल्मों ने पूरे वर्ल्ड में बिज़नेस किया है, तो लोगों को उसकी पहचान जो है वो सामने आ गई है, और लोगों ने उनको खुल के एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। तो मैं तो फ़क्र से कह सकता हूँ कि इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री इज़ सो बिग, सो ब्यूटीफुल, एंड एवरी लैंग्वेज इज़ डन वेल। जैसे मैंने अभी बोला कि हिंदी या मलयालम या भोजपुरी या पंजाबी या तेलुगु या तमिल, ये भाषाएं हैं। हकीकत में जो लैंग्वेज होती है सिनेमा की, वो इमोशंस होते हैं। सर आप कह रहे हैं क्या इंडियन फिल्म मेकिंग, इंडियन सिनेमा इज रेडी टू ब्रिंग आउट इट्स नेक्स्ट मार्वल और डीसी, बट विद वेरी डीपर रूटेड सोल इन इट? देखिए, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। 200 देशों में इंग्लिश बोली जाती है। हिंदी 200 देशों में बोली नहीं जाती। अगर बोली भी जाती है तो कम लोग हैं। हिंदी सिनेमा को मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा, आपको पता है, दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। सबसे पहले शायद इंग्लिश, फिर उसके बाद चाइनीज़, फिर स्पेनिश और फ्रेंच, और फिर उसके बाद हिंदी। तो सोचिए, हम लोग चौथी बड़ी भाषा बन चुके हैं, और इसका क्रेडिट सिनेमा को जा रहा है, हिंदी सिनेमा को जा रहा है। तो ये हमारे देश का बड़ा भारी रिप्रेजेंटेशन करती हैं। भले ही लोगों को हिंदी समझ आ रही हो या नहीं, लेकिन लोग आज भी हिंदी फिल्में विदेशों में देखते हैं। मैं इजिप्ट में गया तो मैं हैरान हो गया देखकर कि कितनी हिंदी सिनेमा का प्यार है। मैं फ्रांस में गया, बेल्जियम में गया, यूके गया, स्पेन गया, मैं उज़्बेकिस्तान गया, मैं अज़रबैजान गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि कई बार लोगों को इतना ज्ञान होता है हिंदी सिनेमा का कि हम फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे फ़िल्म बफ़्स हैं, मैं कहूँगा प्रेमी हैं, हिंदी सिनेमा के प्रेमी हैं। तो हिंदी सिनेमा अपनी जगह बना चुका है। मुझे लगता है कि सिर्फ इट्स अ क्वांटम ऑफ बिजनेस व्हाट वी हैव टू रेस्ट। हिंदुस्तान के अंदर हमारा हम लोग वैसे ही सबसे बड़ा सिनेमा है, हिंदुस्तानी सिनेमा, और मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारी सबसे बड़ी है अमेरिका के बाद। हम लोग इंडिया की 6th बिगेस्ट इंडस्ट्री बन चुके हैं टर्नओवर वाइज, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम लोग शायद 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो जाएंगे देश के अंदर, जिस हिसाब से मीडिया और एंटरटेनमेंट ग्रो कर रहा है। हमारी अपनी जो नेशनल जीडीपी है वो आज की डेट में 7.5 है, विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। लेकिन हमारा जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, दैट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो हमारा जो इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन टोटल जीडीपी के अंदर जो आ रहा है, वो कहीं ज़्यादा है, कई इंडस्ट्रियों से ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड इज़ एट अ ब्यूटीफुल स्टेज टुडे, एंड इट इज़ कैटरिंग टू बिलियंस ऑफ पीपल, नॉट मिलियन, बिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर कुछ आपको ऐसी 2 या 3 चीज़ें लगती हैं दैट यू इफ़ यू हैड डन डिफरेंटली, सो मे बी हम और इसको फर्दर ग्रो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को? मुझे ज़रूरत थी एक देश में यूनिवर्सिटी की, कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसके पीछे एक यूनिवर्सिटी का होना अनिवार्य है। तो मैं तो
शुक्र करूंगा. आई एम सो थैंकफुल टू माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हु वांटेड टू हैव अ फिल्म यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री, और वो स्टेटस यूनिवर्सिटी का हमें ग्रांट हुआ. मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया. और अब हम लोग रायपुर के अंदर 27 एकड़ में नोएडा फिल्म सिटी का एक रेप्लिका तैयार कर रहे हैं, जहां पर पार्ट 2 वहां पर तैयार होगा. अभी 5 साल 6 साल हो गए हमें यूनिवर्सिटी चलाते, और यूनिवर्सिटी वहाँ पे बहुत अच्छा पिकअप कर रही है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में. और इसके बाद क्योंकि ऐसा लगता था कि अब नोएडा फिल्म सिटी पार्ट 1 जो है ये भर गया है, यहाँ स्टूडियोज जो हैं वो भर गए हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, और आने जाने उठने बैठने में लोगों को तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, यहाँ की तमाम बिल्डिंगें जो हैं लोगों से भर चुकी हैं. तो एक फिल्म सिटी पार्ट 2 की ज़रूरत थी. तो एक प्रपोजल हमने दिया था, वो मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि वो प्रपोजल पास हो गया है, और 230 एकड़ में फिल्म सिटी पार्ट 2 जो है वो जेवर के पास सैंक्शन हो गई है, जो Wow. बड़ी जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा. और वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट बहुत है बड़ा हमारे देश की. Yes. Oh, that was good, definitely, because you started the film city at a time when creator economy जैसे words भी नहीं थे, Instagram और YouTube के creators नहीं थे, जहाँ पे ये support system नहीं था, and yet टेलीविजन स्टेशन नहीं थे. टेलीविजन स्टेशन नहीं थे. आपने एक ऐसे इकोसिस्टम को एक्चुअली सो मच फास्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम को आपने इंडिया में सेटअप किया, एंड सेटअप करके सिर्फ इंडिया तक नहीं रखा, आपने उसको ग्लोबल स्केल पे इतना एक्सपैंड किया. इज इटसेल्फ अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन. And to all the media professionals and the future content creators and the filmmakers, uh, if you want to do something in life, as Mr. Mawa says here, you have to fight for that dream. And if you're fighting for that dream, there is nothing that can stop you in achieving it. And you have a live example today sitting with us. But then it's a continuous efforts. That's very important. कि काम करके अगर आप फिर ढीले पड़ जाएंगे तो हो सकता है कि you stick to that level. If you want to raise the level, probably you have to keep on working hard, And keep on innovating. working non-stop. I mean, we all can take inspiration from our honorable Prime Minister. See the way he's been working, the way he's been investing time and taking best use of every minute. That is what is required. Never waste time. Thank you, sir, for sharing all these anecdotes. And I'm sure we are taking a lot from it and learning a lot from it. Pleasure. And with these continuous efforts of your and the team that you've built, families that you have inspired and impacted, it's not far that India's film industry itself will be one of the most contributing industry to the GDP of the country. Yes, for sure. For sure. Thank you, sir. For Thank you for very sharing. much. Thanks a lot.